ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی۔ ناظرین گرامی اس وقت میں بلکہ 2-3 دن آپ کے سامنے اب خصوصی موضوعات پر بولنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کر لیں۔ ناظرین گرامی آج کل کے دور میں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو خود کو سپر پاور بنانے کے قطار میں کھڑے کر کے ایسے مہلک ہتھیار اپنی دفاعی ذخیرے میں جمع کر رہے ہیں جس کو لے کر کے اکثر جو لوگ امن و امان اس دنیا میں چاہتے ہیں مختلف اخبارات میں اپنے اپنے سیاسی تبصرے کرتے ہیں اور تاریخ اور ماضی کے کچھ اوراق کو پلٹ کر انسان کو انسانیت کس طرح تباہ کرتی ہے یا انسانیت سے پرے انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے یا ایک ملک کا دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کے لالچ نے کس طرح بھیانک نتائج ہمارے سامنے لائے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں، کتنے مسلم ممالک ہیں جو تباہی کے کگار پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں۔ عالمی سطح پر یورپین ممالک میں اور رشین ممالک یا ایسے ممالک جو اپنے آپ کو جو ہے امریکہ کے سامنے یا اقوام متحدہ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے، ان کا کیا نظام ہے، ان کا کیا سسٹم ہے، ان کے کیا حالات ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب دنیا ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل جمع ہو رہے ہیں، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اقتدار کے لالچ یا خود کو سپر پاور کے قطار میں شامل کرنے کے لیے ایک ملک جس طرح دوسرے ممالک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے ممالک بھی اس وقت مہلک ہتھیار کو خریدنے اور اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی غربت کے باوجود اپنا بہت بڑا بجٹ اس میں لگا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایٹمی پروگرام کی وجہ سے جو تباہی دنیا میں مچتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے، ممالک کے سامنے لا کر کے تبصرہ نگار جو ہے ان حقائق کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے کہ مدیحہ فصیح نے دوسری جنگ عظیم میں کے دوران 6 اگست 1945 کو ایک امریکی بمبار طیارے نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا تھا، تو اس وقت کیا صورتحال ہوئی تھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں انہی کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ایک اندازے کے مطابق 80,000 افراد فوری طور پر ہلاک ہوئے تھے، مزید دسیوں ہزار بعد میں تابکاری کا شکار ہوئے۔ 3 دن بعد 9 اگست کو دوسرے بمبار نے ناگاساکی پر ایک اور ایٹمی بم گرایا جس سے ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد ہلاک ہوئے۔ نتیجتاً جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے 15 اگست کو ایک ریڈیو خطاب میں ایک نئے اور انتہائی ظالمانہ بم کی تباہ کن طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے دوسری جنگ عظیم میں اپنے ملک کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس تباہ کن جنگ کے خاتمے کو 78 سال پورے ہو چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے 1939 میں امریکی سائنسدانوں کا ایک گروپ جن میں یورپ میں فاشسٹ حکومتوں کے پناہ گزین بھی شامل تھے، نازی جرمنی میں جوہری ہتھیاروں کی تحقیق کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے۔ 1940 میں امریکی حکومت نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو شروع کیا جو دوسری جنگ عظیم میں امریکی داخلے کے بعد سائنسی تحقیق و ترقی کے دفتر اور جنگی محکمے کی مشترکہ ذمہ داری کے تحت آیا۔ یو ایس آرمی کور آف انجینئرز کو ٹاپ سیکرٹ پروگرام کے لیے ضروری سہولیات کی تعمیر کا کام سونپا گیا تھا جس کا کوڈ نام دی مین ہیٹن پروجیکٹ تھا۔ اگلے کئی سالوں میں سائنسدانوں نے نیوکلیئر فشن کے لیے کلیدی مواد یعنی یورینیم اور پلوٹونیم تیار کرنے پر کام کیا۔ انہوں نے انہیں لاس الاموس نیو میکسیکو بھیجا جہاں جے رابرٹ اوپن ہائمر کی قیادت میں ایک ٹیم نے ان مواد کو قابل عمل ایٹم بم میں تبدیل کرنے کے لیے کام کیا۔ 16 جولائی 1945 کی صبح
मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने न्यू मैक्सिको के अल्मोगोर्डो में वाक़ तसलीस टेस्ट साइट पर एक एटमी डिवाइस, एक प्लूटोनियम बम का पहला कामयाब तजुर्बा किया। इस एटमी तजुर्बे के वक्त तक इत्तेहादी ताकतें जर्मनी को यूरोप में शिकस्त दे चुकी थी, ताहम जापान ने बहरुल काहिल में तलख अंजाम तक लड़ने का आज़म जाहिर किया। वाज़े इशारे के बावजूद 1944 के अवाइल में उनके जीतने के इम्कानात बहुत कम थे। अप्रैल 1945 के वस्त जब सदर हैरी ट्रूमैन ने ओहदा संभाला और जुलाई के वस्त के दरमियान जापानी अफवाज के जरिए इन इत्तेहादी अफवाज की हलाकतें बहरुल काहिल में 3 साल तक जारी रहने वाली जंग का तकरीबन निस्फ थी, जिससे साबित होता है कि शिकस्त के इम्कान ने जापान को और भी ज्यादा मुहलिक बना दिया था। जुलाई के आखिर में जापान ने पोट्सडेम एलामिया में पेश करदा हथियार डालने की इत्तेहादियों के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में धमकी दी गई थी कि इनकार की सूरत में इत्तेहादी जापान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। इस सूरत हाल में जनरल डगलस मैकआर्थर और दीगर आला फौजी कमांडरों ने जापान पर रिवायती बमबारी को जारी रखने की हिमायत और एक बड़े हमले की पैरवी की, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया था। उन्होंने अमरीकी सदर को मशवरा दिया कि इस तरह के हमले के नतीजे में 10 लाख तक अमरीकी हलाकतें होंगी। हेनरी स्टिसमैन और जनरल ड्वाइट आइजनहावर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मुतादिद साइंसदानों के अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इतनी ज्यादा हलाकतों से बचने के लिए ट्रूमैन एटम बम के इस्तेमाल का फैसला इस उम्मीद में किया कि इस तरह जंग का फौरी इख्तिताम हो जाएगा। बम के हामियों जैसे ट्रूमैन के वजीर खारिजा जेम्स बायरन्स का ख्याल था कि एटमी बम की तबाहकुन ताकत न सिर्फ जंग का खात्मा करेगी बल्कि दुनिया में अमेरिका को एक गालिब पोजीशन फराहम करेगी। टोक्यो से तकरीबन 500 मील के फासले पर वाक़ तकरीबन 3,50,000 लोगों का मैन्युफैक्चरिंग मरकज हिरोशिमा को पहले हदफ के तौर पर मुंतखब किया गया था। बहरुल काहिल के जजीरे टेन्यान पर अमरीकी अड्डे पर 9,000 पाउंड से ज्यादा का यूरेनियम 235 बम एक तरमीम शुदा B-29 बमबार पर लादा गया। तैयारे ने सुबह 8:15 पर पैराशूट के जरिए बम लिटिल बॉय को गिराया, जो हिरोशिमा से 2,000 फीट ऊपर 15,000-12 टन TNT के बराबर धमाके में फट गया। इस धमाके से शहर का 5 मुरब्बा मील तबाह हो गया। हिरोशिमा की तबाही फौरी तौर पर जापानी हथियार डालने में नाकाम रही। 9 अगस्त को एक और B-29 बमबार कोटनियान से उड़ाया गया। इसका बुनियादी हदफ कोकोरा शहर था, लेकिन घने बादलों ने बमबार को सानवी हदफ नागासाकी पहुंचा दिया, जहां सुबह 11:02 पर प्लूटोनियम बम फेट मैन गिराया गया और हिरोशिमा में इस्तेमाल होने वाले बम से ज्यादा ताकतवर इस बम का वजन तकरीबन 10,000 पाउंड था और उसे 22 किलो टन के धमाके के लिए बनाया गया था। नागासाकी टिपोग्राफी जो पहाड़ों के दरमियान तंग वादियों में वाक़ई थी, उसने बम के असर को कम कर दिया, जिससे तबाही 2.6 मुरब्बा मील तक महदूद हो गई। इस बमबारी का नतीजा क्या हुआ? जापानी शहंशाह हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को एक रेडियो खिताब में अपने मुल्क के हथियार डालने का ऐलान किया। इस खबर के बाद जापान में फतह की तकरीबात पूरे अमेरिका और दीगर इत्तेहादी ममालिक में शुरू हो गई। हथियार डालने के रस्मी मुआहदे पर 2 सितंबर को टोक्यो बे में लंगर अंदाज अमरीकी जंगी जहाज मैसूरी पर दस्तखत किए गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी से दोनों शहरों का ज्यादातर बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और उनसे होने वाली हलाकतों की सही तादाद नामालूम है। ताहम अंदाजा लगाया गया है कि इन धमाकों और ताबकारी की तवील मुद्दती मुज़िर असरात से हिरोशिमा में तकरीबन 70,000 से 1,35,000 अफराद और नागासाकी में 60,000 से 80,000 अफराद हलाक हुए। अलावाजी हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी धमाकों ने सर्द जंग और दुनिया भर में एटमी हथियारों के फैलाव जैसे आलमी असरात को भी जन्म दिया। सर्द जंग एक ऐसी दुश्मनी थी जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की 2 सुपर पावर्स यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ साथ उनके मुताल्लिका इत्तेहादियों को सियासी, इक्तिसादी और जौहरी बरतरी के लिए लड़ते देखा। इस वक्त दुनिया में 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं। वहीं रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शिमाली कोरिया और इसराइल। इनमें से इसराइल ने कभी भी किसी जौहरी तजुर्बे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद एटमी हथियारों को जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल आइंदा किसी जंग में होता है तो इंसान और जानदार जिंदा नहीं रह सकेंगे और पूरी दुनिया का सफाया हो जाएगा। एक एटमी हथियार किसी शहर को तबाह कर सकता है और उसके ज्यादातर लोगों को हलाक कर सकता है।
हिरोशिमा और नागासाकी के बम धमाके उसकी अहम मिसाल हैं। जदीद शहरों पर जौहरी धमाकों या दो ममालिक के दरमियान एक बड़ी एटमी जंग से करोड़ों हलाकतें हो सकती हैं। जौहरी हथियारों की वजह से होने वाली तबाही सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद नहीं रह सकती। जौहरी हमले से ज्यादातर हलाकतें आम शहरियों की होती हैं। लोग जौहरी धमाके उसके नतीजे में ताबकारी से या तो मारे जाते हैं या तवील मुद्दती सेहत के असरात का शिकार हो जाते हैं। या किसी का पैर टूट गया, किसी का दिमाग उड़ गया, कोई पागल हो गया, कोई माजूर हो गया, यहां तक कि पड़ोसी शहरों या ममालिक में रहने वाले भी एटमी धमाके के असरात से दो चार होंगे। जौहरी हथियार आम शहरियों और अस्करियत पसंदों के दरमियान फर्क नहीं कर सकते। दूसरे जौहरी धमाकों पर कंट्रोल ना होना उन्हें गैर इंसानी हथियारों की एक बेहतरीन मिसाल बनाता है, जिसे गैर कानूनी करार देने की जरूरत है। जौहरी हथियार आयनाइजिंग ताबकारी पैदा करते हैं जो राब्ते में आता है। ये उन लोगों को मार देती है या बीमार करती है, माहौल को आलूदा करती है और कैंसर और जिन्नियाती नुकसान समेत तवील मुद्दती सेहत के असरात मुरतब करती है। जौहरी हथियारों की तैयारी का भी माहौल पर असर पड़ता है। एटमी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद की पैदावार देर पा ताबकार आलूदगी का बाइस बनती है। दुनिया में 1% से भी कम जौहरी हथियारों का इस्तेमाल आलमी आबो हवा में खलल डाल सकता है और तकरीबन 2 अरब अफराद को जौहरी कहत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका और रूस के पास मौजूद हजारों जौहरी हथियार एक जौहरी मौसम सरमा का बाइस बन सकते हैं जो जरूरी माहौलियाती निजाम को तबाह कर सकते हैं, जिन पर तमाम जिंदगी का इन्हिसार है। वह एक नाज़रीन ग्रामी, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने इसलिए रखना पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन रशिया के माबैन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जो ममालिक अब तक अमेरिका के पास या करीब या दोस्त माने जाते थे, उनका रुख रशिया, चाइना और कोरिया की जानिब या ईरान या तुर्की की जानिब होने लगा है। और ऐसी सूरत हाल में आलमी सतह पर बदलते हुए मंजरनामे में इस वक्त जो है तीसरे आलमी जंग की दस्तक देने की अलग अलग तरह से तफसीरें जब पढ़ने में सामने आए तो ऐसी सूरत हाल में इन तमाम जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का गुमान बढ़ जाता है। इसकी वजह से इस वक्त जो है पहले जो माजी में पेश आए एक तबाहकुन असरात है उसको लोगों के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है ताकि लोग अपने अपने मुल्क में चौकन्ना रहें और अपने हुक्मरानों को इस तबाहकुन जंग से जो है बाज रखें। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।